The teaching of Vedantu was amazing. One aspect where Vedantu teaching differed from a normal offline coaching was the attention teachers gave to our doubts. No matter how many times we asked a doubt, the teachers would patiently clear the doubt every single time. And they made learning a very fantastic experience for us. So you need that. Okay, sorry. Hello, bachcho. How are you? I hope all of you are good, in awesome spirit, and your studies are going well. Okay. So, bachcho, today is my 5th class on definite integration, and we have learned lots of properties. We have learned how to solve problems of JEE level. And today we are going to focus on periodic functions specially. ठीक है, क्योंकि periodic functions के ऊपर questions are very frequently asked in integration, not just in the chapter of definite but also in area under the curve. So this will help a lot. Then today we will solve lots of miscellaneous problems as well. And my next class will be the most important class, bachcho. So this is what we have been doing. So we have learned lots of properties. Last class was on Newton-Leibniz and summation as integration. आप सब बच्चों को वो क्लास में काफ़ी मज़ा आया था, I believe, क्योंकि lots of interesting problems were solved. अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, if you haven't seen that class, please go and revise this class, very important. Today we are going to do, again as I said, periodic functions and miscellaneous questions. My class on 31st is going to be the most important class. Lots of shortcuts there and lots of JEE Mains and Advanced level problem solving. So all these classes are very, very important. Definite integration in general is very important. Okay, bachcho? Chalo. These were the classes that are happening today from 4 p.m. You had, I think, combination of cells and heating effect of current. Then zero order reaction, 5 p.m., 6 p.m. my class. Then you have pre-RMO class at 7 p.m. KVPY classes at 8 p.m. and 9 p.m. So ensure that you are watching KVPY classes as well, because those classes are important not just for KVPY but for your JEE Advanced as well. धीरे धीरे आपकी grooming होगी for JEE Advanced if you attend KVPY classes. Okay, very important. चलो. Introduction about myself, but I think I've been giving it, so today I skip it. Let's not waste time. But yeah, one thing that I want to talk about, we at Vedantu are taking classes on YouTube, so that with the vision that students from all parts of the country can learn irrespective of their financial background. हर बच्चा पढ़ पाए, उसके लिए हम YouTube पे क्लास लेते हैं, right? Sort of coaching free India. So if you really believe in that vision, do share Vedantu classes with your friends on WhatsApp, on Telegram, wherever you want. Okay? And do subscribe if you have not subscribed by pressing on the bell icon. ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों. These are the kind of questions that we are going to solve today. So this is one of the questions that I am going to take in the class. If you are watching the replay, बाद में अगर देखोगे, आप बाद में देख रहे हो, if you want to solve it, pause the video, solve it and put the answer in the comment box. Okay, but if you are watching it live right now, चलो हम इसको करने वाले हैं, we'll do it. Today we are going to solve these kind of problems as well, which look a bit complicated. ठीक है, मॉडुलस भी आ गया, 0 से n pi plus v आ गया, कुछ कुछ तो हो रहा है. We will learn to solve these kind of problems as well today, and we are going to solve some very miscellaneous looking problems. Look at this problem. Looks very tricky, right? You will realize solving such problems is very, very simple. So it will involve Newton-Leibniz and some other concepts. Today we are going to solve this problem as well. ठीक है, अगर आप बाद में देख रहे हो बच्चों, अगर ये रिप्ले देख रहे हो आप बाद में, if you want to solve it and put the answer in the comment box. Today I am going to give you 3 to 4 very nice problems in home assignment as well towards the end. ठीक है, so home assignment as well towards the end. This we discussed. All the PDF of the classes get shared on Telegram. The link is there in the description. The PDF and the assignments which I have given you are getting shared here, as well as they are getting shared on Vedantu app as well. Okay, so Vedantu की app download कर लो, वहाँ पे सारे PDF, सारे assignments are available. Anyways, चलो, let us begin with our periodic functions की understanding today. This is what we will start with. आ जाओ बच्चों. So we are studying now. So
So बच्चों, this is the first property that I will start with. This is the first property that I'm going to start with. So what is this बच्चों? Let me explain this to you. ये बोल रहा है अगर आपके पास f of x एक पीरियोडिक फंक्शन है, so f of x is a periodic function, right? So imagine करो पीरियोडिक फंक्शन का ग्राफ बच्चों कैसा होता है. Just to give you an insight, कुछ ऐसा ग्राफ होता है. Just to help you visualize, okay? So imagine this is a graph. Does it look like a periodic function a graph? Yes. कैसे? अगर ये 0 है तो ये t है, तो ये 2t है, ये 3t है एंड सो ऑन. ऐसे जाओगे तो आपके पास आ जाएगा nt. So this is a periodic function. बच्चों, what is a periodic function? A function which repeats itself after an interval of t, if the period of the function is t. So it is a periodic function. What do you want बच्चों? You want to integrate it between 0 से n times t. मैं 0 से लेके n times t तक इसको integrate करना चाहता हूँ. Now I am giving you a very simple graph to help you visualize this property. Because actually अगर आप visualize करोगे ना, this property is obvious. तो इसको हम visualize करते हैं कैसे? Let me give you a way. Integration 0 से nt. इस ग्राफ में बच्चों क्या है? It is like this entire area under the graph. कहां से कहां तक? From 0 से लेके nt. But why do I integrate from 0 से nt? Since all these portions are same. Because it is a periodic function which repeats. तो भैया मैं एक काम करता हूं. Why don't I integrate only between 0 से t? Why do I not integrate only between 0 से t? जो भी आंसर आएगा, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है n टाइम्स, I will multiply that by n. Hence the property. समझ में आया? Yes or no? समझ में आया कि नहीं आया? ये make sense? So does it look very obvious to you? Yes or no? Yes or no बच्चों? So it's very obvious. And if you keep understanding, keep press on the like button so that I keep getting that feedback. Very obvious, right? So this is a very obvious property. Now let me extend this property. So फिर से रिवाइज करेंगे. 0 से n times t fx बच्चों will be n times 0 से t fx dx only when f of x is a periodic function whose period is t. Very soon we will take examples. चलो, now अब एक काम करते हैं. Let me extend this property to this. Let me give you the generalized version of this property. वो क्या है? a से लेके a plus n times t is n times 0 से t fx dx. Now this is the generalized version of this property. क्या है ये? मैं समझाता हूँ आपको. Let me explain this to you. क्या था? What did we learn some time back? We learned 0 से लेके n times t fx dx. बच्चों क्या हो जाता है? It becomes n comes outside becomes 0 से t. अब क्या किया अपन ने? अब rather than going from 0 से nt, actually I am going from a से लेके a plus nt. I am going from a से लेके a plus nt. Imagine this is a periodic function graph. It looks like a sine graph, periodic function graph, right? So मान लो ये कितना था? This is say 0. This is a, this is आपका, sorry, this is your t. ये क्या है आपका? t. This is 0. This is where one cycle of the graph gets completed. One cycle of the graph gets completed, then it again gets repeated. So ये कितना है? t. ये बच्चों कितना है? 2t. Similarly बच्चों ये क्या है? This is your n times t. Right? अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं बच्चों कहां से कहां तक? I am integrating from a. All this positive या negative area does not matter. मैं यहां से लेके इंटीग्रेट कर रहा हूं कहां तक बच्चों? यहां तक. So starting from a, this is a point a, this is a, and this is a plus nt. मतलब ये तो क्या था? nt से बच्चों कितना आगे आ गया मैं? a आगे आ गया. Can I do one thing? Can I take this? It will directly fit here. समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? मैं इसको यहां से हटाता हूं.
क्योंकि सब पीरियोडिक है ना, एवरीथिंग इज सिमेट्रिकल। तो अगर मैं इस शेडेड पोर्शन को यहां से हटा के यहां पे रख दूं तो एक्चुअली आप क्या इंटीग्रेट कर रहे हो, इसको हटा देता हूं, इस शेडेड पोर्शन को हटा देता हूं। एक्चुअली आई एम इंटीग्रेटिंग बिटवीन जीरो से लेके एंटी ओनली। दैट्स इट, जीरो से लेके एंटी। क्यों? क्योंकि जो मैंने ए से लेके यहां तक जो पोर्शन था, ठीक है, वो तो ये रहा, और बट व्हेन आई वेंट फ्रॉम एंटी प्लस ए, तो ये जो पोर्शन आया, इस पोर्शन को मैं ऐसे कैसे उठा के रख सकता हूं यहां पे, आई कैन पिक अप दिस पोर्शन एंड कीप इट एज इट इज। सो रेदर देन इंटीग्रेटिंग फ्रॉम ए से लेके ए प्लस एन टी, एक्चुअली आई कैन इंटीग्रेट बिटवीन जीरो से लेके एन टी। बट जीरो से लेके एन टी इज, आई ऑलरेडी नो, इज नथिंग बट एन टाइम्स जीरो से लेके टी। समझ में आया? यस और नो? यस और नो? हाँ प्रीतम, it does not matter if it is n is even or odd, it does not matter. N has to be integer. N has to be integer, that's it. N is not a fractional value. N is an integral value. समझ में आ गया? Yes? Cool. So dotted line क्या है? Somebody is asking what is dotted line. Just to show you that there are lots of such cycles in between when we go from here to NT. Just to show that. कूल। अब ये दो प्रॉपर्टीज आ गई, नोट कर लो कॉपी में, नोट कर लिया। अभी एप्लीकेशन सीखने वाले हैं बहुत जल्दी। सो व्हाट डिड वी लर्न? जीरो से एन टी इज एन टाइम्स जीरो से टी। हमने ये भी सीखा ए से लेके ए प्लस एन टी, ए डज नॉट मैटर, ए को हटा दो। ए से लेके ए प्लस एन टी, ए डज नॉट मैटर, इट इज एक्चुअली लाइक राइटिंग जीरो से लेके एन टी, बट जीरो से लेके एन टी मीन्स एन टाइम्स जीरो से लेके टी। Cool. So a plus nt, a does not matter, a is not required, a can be removed. Cool. Now the last property here is this बच्चों। ये तीन प्रॉपर्टी के बाद we'll start solving the problems. Okay? mt से nt, very simple, very simple. Again, if you visualize my graph, it is again obvious. The graph that I told you was dupok, 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 periodic function, right? So it keeps going like this. मान दो ये आपका periodic function है, this is your periodic function, let us assume, right, where this is 0, this is t, this is 2t, this is 3t. Imagine this is your mt and this is your nt, right? Agree? So what are you doing? You are integrating between mt से लेके nt. You are integrating between like 5 times t से 7 times t. Imagine this is 5 times t, this is 7 times t. So this is what you are integrating. But why to integrate from mt से nt? अरे simply do this. Simply do what बच्चों? हो जा, हाँ, simply do this. Simply do this. मान लो ये कितना आ रहा है, मान लो this is a, मान लो this 0 से t integration, मान लो 0 से t fx dx is nothing but a, right? What's your answer? Your answer is how many times is this a getting repeated? How many times is a getting repeated? n minus m times, n minus n times a is actually all these three. समझ में आया? So when you integrate from mt से nt, why do you want to exert so much? चुपचाप क्या करो, 0 से t कर लो, only do 0 से t, then make it multiply by how many times is the period getting repeated between mt से nt. How many times is it getting repeated? n minus m times. काम खत्म. Very simple. So all these properties become very obvious if you visualize it graphically. समझ में आया? ठीक है? So again, that is why I say I don't remember properties. When I was a kid like you, I hated remembering stuff. I always wanted a visualization
एक बार विजुअलाइजेशन हो गया ना बच्चों, उसके बाद प्रॉपर्टी इज नॉट अबाउट रिमेंबरिंग, इट इज ऑब्वियस। इसमें क्या है, मैं याद ही नहीं रखता इसको कभी, बिकॉज वेन एवर इट कम्स इन माई माइंड आई प्लॉट दिस डुपुक 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 ग्राफ, एवरीथिंग बिकम्स वेरी सिंपल फॉर मी। ठीक है, क्लियर? चलो अब लेट अस अप्लाई दिस इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आ जाओ प्रॉब्लम के ऊपर, इसको छोड़ दो, नॉट इंपॉर्टेंट। हाँ, लेट्स डू दिस प्रॉब्लम। 0 से 4 पाई मॉडुलस ऑफ cos x, 0 से 4 पाई मॉडुलस ऑफ cos x। बट बिफोर दिस बच्चों, लेट मी टेल यू अ शॉर्टकट, नॉट अ शॉर्टकट, समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, आई टोल्ड यू लास्ट टाइम ऑल्सो। याद रखना बच्चों, इन द ग्राफ ऑफ साइन एंड कॉस, ये ग्राफ किसका है, साइन, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन, राइट, 0 से लेके पाई। सिमिलरली द ग्राफ ऑफ कॉस, बच्चों याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर दैट ये जो एरिया होता है ना, दिस एरिया दैट इज 1/4 1/4 ऑफ द साइन या कॉस का ग्राफ। बच्चों इसका एरिया होता है 1, इट्स द शेडेड रीजन एरिया इज 1 यूनिट, इट इज 1 यूनिट। मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज यू कैन नोट इट डाउन, 0 से लेके π/2 sin x एंड 0 से लेके π/2 cos x इज 1। इसको याद कर लो, ऑल्दो इट इज जस्ट फ्यू सेकेंड्स का कैलकुलेशन, बट इफ यू रिमेंबर इट यू विल स्टार्ट सॉल्विंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स वर्बली। कैसे? देख अभी करते हैं अपन। तो ये साइन का कितना हो जाता है बच्चों इंटीग्रेशन, या कॉस का कितना हो जाता है, साइन π/2 1 माइनस साइन 0 0, दैट इज 1, ये आ गया। नाउ विजुअलाइज दिस, आई वॉन्ट यू टू सॉल्व इट वर्बली, सो लॉट ऑफ यू आर सेइंग आंसर इज 8, ठीक है? कैसे इन बच्चों ने कैसे किया? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर माय फंक्शंस का क्लास in which I took periodic functions in one entire class, we discussed periods in detail. Do you remember I taught you this? I taught you that the period of cos x का mod या sin x का mod या tan x का mod, all these three functions are periodic and their period is sin या cos या tan का mod, these are periodic functions and its period is pi. Why? Very obvious, because अगर आप cos के mod का ग्राफ प्लॉट करोगे, what will happen? Because of the mod, all these negative portions will come up. Baba function, it makes everything positive. Remember our Baba function from application of derivative. So the graph of mod of cos x बच्चों will look like this. So this is the graph of mod of cos x. It starts from say 0, I need to wherever I want to go. So this is the graph. So this is 0, π/2, pi, 3π/2, 2pi. This is the graph of mod of cos x. ये किसका ग्राफ है बच्चों? mod of cos x का ग्राफ ये होता है, ठीक है? All negative portions come up, but since the period is pi, using the property, what was the property बच्चों? इसको हटा देता हूं, let me remove this. I will take time in solving the first problem so that next problems you can solve verbally. I am taking time in this. So the property was 0 से लेके n times t fx is n times 0 से t fx if t is the period. So बच्चों what is the period here? The period is pi in the so ये क्या लिखा है? 0 से लेके n times t. So this can be written as 4 take outside integral 0 से लेके pi mod of cos x. My question is, do you need to solve any further? अरे नहीं रे बाबा, you don't have to solve any further. Why? क्यों? Because you remember, what do you remember बच्चों? You remember that this portion का area is 1. So between integration 0 से pi mod of cos x is the area. What is the area? It is this area. 0 से pi,
1 कितनी बार आ रहा है, इसका एरिया कितना है बच्चों 1, इसका एरिया भी कितना है बच्चों 1, सो 0 से पाई बच्चों कितना हो जाएगा 2, so this will become what 2, so answer is 4 into 2 and that most of you said is 8 is correct. समझ में आ गया? Got it? Yes or no? Yes? So never, you don't have to solve integral cos and sine again and again. If it is mod of sine cos, this is how you need to approach. केवल याद रखो इस पोर्शन का एरिया 1 होता है, हाउ मेनी टाइम्स इट गेट्स रिपीटेड इज योर आंसर. वेरी सिंपल. ठीक है, नाउ लेट्स सी इफ यू कैन डू द नेक्स्ट प्रॉब्लम इमीडिएटली फास्ट. ठीक है, I have done it for you, but we did not require to do this step because इसके आगे का step became verbal for us. ठीक है, so this calculation is not needed because now you can do it verbally. So answer is 8. ठीक है, anyways do this verbally. I want the answer verbally. AIEEE मतलब like JEE Mains का level. हाँ महावीर, आई एम सीइंग योर क्वेश्चन. क्या है बेटा आपका क्वेश्चन? सर आई वांट टू लर्न इंटीग्रेशन. तो महावीर प्लीज रिवाइज माय प्रीवियस क्लासेस. दिस इज माय 5th क्लास ऑन इंटीग्रेशन. प्लीज रिवाइज माय प्रीवियस 5 क्लासेस. आई एम श्योर यू विल गेट अ हैंग ऑफ इंटीग्रेशन. डोंट वरी, इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा. ठीक है, व्हेन विल यू स्टार्ट बायनोमियल? बेटा वो 11th की पैरेलल क्लासेस चल रही है, उसके अंदर बायनोमियल होने वाला होगा. ठीक है, ओके महावीर, cool. So lot of you are saying answer is 18. Okay, Preetham says 18, Pranav Undre says 18, Shiv says 20, Gabbar is back. क्या बात है, says 20. चलो देखते हैं. बहुत सिंपल है. Do you realize हमने क्या किया था? हमने क्या था, इंटीग्रल NT से लेके MT fx dx. याद है? अब डुपुक गोइंग फ्रॉम MT से NT is like going from 0 to A, is like going from 0 से T, sorry. But how many times are we going? M minus N या N जो भी ऊपर है, this minus this times. Agree? Same तो लिखा ही है, same तो लिखा है. आपको पता है this is a periodic function and its period is pi. So basically this is written 1 times pi से 10 times pi, NT से MT या MT से NT, जो भी बोल रहे हो आप. Can I also write this as nothing but 10 minus 1 इंटीग्रल 0 से लेके pi mod sin x. बस हो गया. ये क्या लिखा है? दिस इज 9. ये तो आप ऑब्वियसली कर ही लोगे. दिस इज व्हाट? दिस इज, यू ऑब्वियसली कैन विजुअलाइज थ्रू ग्राफ. This is the graph between 0 से pi. This is 1. This is 1. So this is 2. This is 9. So this is 9 into 2. This is 18. You guys are correct. 18 is the answer. समझ में आ गया? Super fast. ठीक है? So in such problems, your answer has to be verbal within 2 seconds. ठीक है? Okay, साहिल, सोनी, got it? Cool. आगे बढ़ जाए. चलो. So what is the most important property? युवराज चक्रवर्ती, most important property I told you कौन सी थी? King's rule, second class में जो किया था अपन ने. ठीक है, हाँ ये तो हो गया. चलो इसको छोड़ो, इस पे आ जाओ. This is JEE problem, this is an IIT problem. पढ़ो इसको आराम से. Take your time to read it. सूरज says faster than Superman. Yes. अभी देखना जो इसके बाद वाली क्लास है ना, 31st वाली क्लास, उसमें देखना आप कितना फास्ट कैलकुलेशन करोगे. इन दैट क्लास आई विल टेक लॉट्स ऑफ JEE एडवांस एंड JEE मेंस लेवल प्रॉब्लम्स एंड यू विल रियलाइज प्रॉब्लम्स आर सो सिंपल. अरे कैलकुलस सिंपल है रे बाबा, बहुत सिंपल है. I इज इक्वल टू, देखो क्या बोल रहा है ये, उप्स, I इज इक्वल टू 0 से लेके T fx dx. I इज दिस, राइट. इसका मतलब क्या है?
this means, this is the definition of, this means ये इसका मतलब है। ध्यान रखना बच्चों, ये मैंने आपको पढ़ाया था इन द चैप्टर ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस, राइट, इन द चैप्टर ऑफ फंक्शंस। f of x plus t is equal to fx means f of x repeats itself when you increase x by x plus t, the function gets the same value. It means that the function is periodic with the period t. This is the most basic definition of periodic function whose period is t. याद रखना इसको, ठीक है। कैसे? जैसे आप लिखते हो ना sin of x plus 2 pi, कितना होता है sin of x plus 2 pi? sin x, क्योंकि आप बोलते हो कि x को 2 pi से इंक्रीज करूंगा तो साइन चेंज नहीं होगा, मतलब द साइनसोइडल फंक्शन विल नॉट चेंज। व्हाई? बिकॉज इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, एवरी 2 pi के बाद रिपीट होता रहता है। सेम डेफिनेशन, सेम डेफिनेशन, मेक सेंस? ये समझना जरूरी है, दैट्स व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग। नाउ आपको चाहिए क्या? यू वांट दिस, यू वांट दिस। आंसर तो आ ही गए होंगे, लॉट ऑफ सीज आर कमिंग। सी इज 3i, इज द आंसर 3i? चलो देखते हैं। मुझे चाहिए भाई ये i इज 0 से d fx dx, 3 से 3 प्लस 3t f of 2x। पहले तो मुझे f of 2x समझ में नहीं आ रहा। I want to deal with x, not 2x, because I know f of x is periodic. f of 2x confuses me, ठीक है, मुझे confusion नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 2x को t बोल देता हूँ यार, क्यों लोड लें ज़बरदस्ती। Let me say 2x is equal to t। तो बच्चों क्या हो जाएगा आपका, dx कितना हो जाएगा, dt by 2। तो ये इंटीग्रेशन बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू f of t dt, हाफ कम्स आउटसाइड। नाउ 3 से लेके 3 प्लस 3t, ये कितना बन जाएगा, व्हेन x इज 3, दिस इज द लिमिट ऑफ x, व्हेन x इज 3 तो t बच्चों कितना हो जाएगा, 6। व्हेन x इज 3 देन t कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ दैट, और ऊपर कितना हो जाएगा, 6 से लेके 6 प्लस 6 से लेके सॉरी 6 प्लस 60 हो जाएगा। एग्री यहां तक? सो नाउ यू गॉट योर मिस्टेक। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर टेलिंग देयर मिस्टेक हियर, बट स्टिल आई थिंक यू आर रॉन्ग। अभी देखते हैं। तो यहां तक तो आ गया। अब देखो एक प्रॉपर्टी थी अपनी, a से लेके a प्लस एन टी। रिमेंबर द प्रॉपर्टी वॉज इंटीग्रल a से लेके a प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स। a इज ऑफ नो यूज, मैंने बताया था a इज ऑफ नो यूज, a तो हटा दो, ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, n टाइम्स 0 से t। याद आया? a से लेके a प्लस एन टी में a इज ऑफ नो यूज, आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ दिस क्लास। तो a से लेके a प्लस एन टी, राइट, बिकॉज f ऑफ t या f ऑफ x इज पीरियोडिक विद द पीरियड t। तो इसको मैं लिख सकता हूं भैया, हाफ इज आउटसाइड इंटीग्रल 6 और 6 को तो उड़ा दो, बच गया कितना, 0 से लेके 60 एफ टी डी टी। नाउ दिस 6 विल कम आउटसाइड, 6 बाहर आ जाएगा। अब बताओ आंसर क्या है, दिस 6 विल कम आउटसाइड, एन टी, एन कम्स आउटसाइड, 6/2 कितना हो जाएगा, 3। अब बताओ आंसर क्या है, वापस से सी पे आ गए। चलो लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन। या दिस इज द एक्सप्लेनेशन। सो व्हाट इज द आंसर बच्चों, आंसर इज सी, यू आर राइट, आंसर इज सी, 3t। क्या किया मैंने, मुझे क्वेश्चन दिया था 3 से लेके 3 प्लस 3t, आई डिड द सब्सटीट्यूशन 2x इज इक्वल टू t बिकॉज आई वॉन्टेड टू अवॉइड कंफ्यूजन, ठीक है। तो उससे मेरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, दिस क्वेश्चन कन्वर्टेड इनटू दिस with the substitution 6 से लेके 6 प्लस 60, बट आई न्यू द प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन a से लेके a प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स इज नथिंग बट n टाइम्स, राइट। तो क्या किया, 6 और 6 तो बेकार है, 6 दिस 6 एंड दिस 6 विच इज लाइक a इज ऑफ नो यूज, तो वो तो हट गया, बचा कितना, सिंपली हाफ इंटू n, n इज 6 times 0 से t f t dt which is nothing but I. So half into 6 times I, that is nothing but
3i. Got it? Cool. समझ में आ गया? तो such again this was a JEE problem. So these concepts are very important for JEE. Expect such concepts in JEE Mains and JEE Advanced both. Anything where visualization is involved is a favorite of JEE. याद रखना, ये JEE के लिए important क्यों है? क्योंकि यहाँ पे JEE समझ रहा है that students need to visualize it to be able to understand it. Cool? Hence important. Yes, आर्यन you are right. देखो आर्यन क्या बोल रहा है? आर्यन you are right. आर्यन बोल रहा है अगर f of x का पीरियड होता है t, तो f of 2x का पीरियड बच्चों कितना होता है? इफ यू रिमेंबर माई क्लास ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस, इसका पीरियड हो जाता है t/2. तो आप डायरेक्टली f of 2x से भी कर सकते थे, ठीक है, बट जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन मैंने इस तरीके से किया. आर्यन यू आर राइट, यू आर करेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ ये आपका जेई का प्रॉब्लम है. दिस इज लाइक ए जेई एडवांस्ड प्रॉब्लम. दिस इज लाइक ए जेई एडवांस्ड प्रॉब्लम. महावीर सी माई इंटीग्रेशन कमेंट प्लीज. ठीक है महावीर, एक काम करना बेटा, उसमें डाल देना आफ्टर द क्लास पुट योर मैसेज इन द कमेंट सो दैट आई कैन सी इट एंड रिप्लाई टू इट. ओके, Shakti, beta, you can ask your doubts in the Telegram group. Lot of students are asking doubts there and students are helping each other there. That's an amazing group. Lots of students ask doubts and lots of teachers and students answer the doubts. You can do that. Okay, Mahavir, आप डाल दो. You can put that in the Telegram group as well. Pranav Undre, doesn't matter. Doesn't matter if the graph is below x-axis or above x-axis. All the properties remain the same. Just for the sake of simplicity, I made the graph above x-axis. But a से लेके a plus nt वाले केस में Pranav, I showed the graph which went up and down as well. It does not matter. Pranav, got it? हाँ. Now, अब देखो इसके ऊपर आ जाओ. क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है 0 से लेके n पाई प्लस v. कैन यू सी दिस? इंटीग्रल 0 से लेके n पाई प्लस v मॉड ऑफ साइन एक्स dx. मैंने ऑप्शंस नहीं दिए, अदरवाइज यू स्टार्ट राइटिंग ए बी सी डी, राइट? आई वॉन्ट यू टू सॉल्व इट योर सेल्फ. यार मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट मुझे लग रहा है कि v दिया हुआ है बिटवीन 0 टू पाई. v is given between 0 to pi. That is, if I go from 0 to v, I can open the mod. I can open the mod. क्यों? एक्सप्लेन करता हूं. मैं क्या करता हूं, गोइंग फ्रॉम 0 टू n pi plus v. So let me go like this from here to here. Let me go from 0 to v and then from there go to v से n v plus n pi तक. So let me break it into two parts. Let me break it as 0 से लेके v modulus of sin x plus integral. Now I will go from v. Now I will go from v से लेके v plus n pi. बड़ी अच्छी बात है. ऐसा क्यों किया मैंने? Why did I do it? Because ये suddenly this makes some sense for me. Remember the graph of sin x बच्चों? sin x का ग्राफ कैसा होता है? This is the graph of sin x. Between 0 to pi, आपको पता है between 0 to pi, that is in first and the second quadrant, sin x is positive. ये जो v है अपना, this v lies between 0 to pi. ये v कहाँ तक है? v कहीं 0 से pi के बीच में लाई करता है. So between 0 to v, the sin x is positive. Since sin x is positive, between 0 to v, the mod will open with a positive sign. Since sin x is positive between 0 to v, I can actually remove the mod. I can simply write it sin x. Agree? Yes or no? So if you agree to this, then you can actually solve this. ये तो solve हो गया बच्चों. This portion is solved. sin x का तो इंटीग्रेशन सबको पता ही है. sin कितना होता है? sin का इंटीग्रेशन कर लोगे, राइट? ये तो हो गया सॉल्व. दिस गॉट सॉल्व. माइनस कॉस बिटवीन 0 टू v. नाउ आई विल फोकस अवर अटेंशन ऑन दिस.
नाउ वी विल फोकस आवर अटेंशन ऑन दिस थिंग. बट सडनली यू रियलाइज, अरे ये तो प्रॉपर्टी है. विच प्रॉपर्टी? ए से लेके ए प्लस एन पाए. रिमेंबर द प्रॉपर्टी, ए से लेके ए प्लस एन पाए. ए इज ऑफ नो यूज, वी इज ऑफ नो यूज. इट डायरेक्टली बिकम्स बच्चों क्या? दिस डायरेक्टली बिकम्स नथिंग बट एन टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके पाए मॉड साइन एक्स. एग्री? यस और नो? ए से लेके ए प्लस एन पाए मॉड साइन डी एक्स. सिंस द पीरियड इज पाए, मॉड है ना, मॉड साइन पीरियड इज पाए, सो ए से लेके ए प्लस एन टाइम्स टी इज नथिंग बट एन टाइम्स 0 से टी एफ एक्स डी एक्स. मॉड साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम पढ़ ही चुके हैं, 0 टू पाए, बिटवीन 0 टू पाए 1 1 2. तो दिस सिंपली बिकम्स विथ कितना? ये हो जाएगा सिंपली नथिंग बट 2n. तो बच्चों ये तो आ गया 2n. सो दिस बिकम्स 2n. इसको सॉल्व करोगे, व्हेन यू सॉल्व दिस वन यू विल सी इट विल बिकम व्हाट? 1 माइनस कॉस वी. राइट? सो ये भी आ गया. दैट्स इट, वेरी सिंपल. ठीक है महावीर, ओके, ऑल ऑफ यू ग्रेट. समझ में आया? यस और नो? यस और नो? सो दिस इज अ JEE advanced problem. It came long back when the paper used to be subjective. हाँ Rajdeep, I'll explain once again. Yes Ayushman, yes I do. ठीक, चलो let me explain you once again as a revision. क्या हुआ देखो बच्चों, we started with 0 से लेके n पाई mod sin x dx. मैंने उसको ब्रेक किया बिटवीन 0 से v mod sin एंड v से लेके n पाई प्लस v mod sin. बट इसके अंदर क्या हो गया? व्हाट हैपेंड हियर? द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर वाज दैट दिस कन्वर्टेड इनटू दिस. मतलब द मॉडुलस गॉट रिमूव्ड. व्हाई द मॉडुलस गॉट रिमूव्ड? बिकॉज हमें पता है बिटवीन 0 टू पाई साइन इज अ पॉजिटिव फंक्शन. फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में मान लो यहाँ पे v है एंड v इज गिवन टू लाई बिटवीन 0 टू पाई एंड 0 टू पाई के बीच में साइन पॉजिटिव होता है. इफ समथिंग इज पॉजिटिव एंड इज इनसाइड द मॉड, मॉड को हटा दो, क्या फर्क पड़ता है? एनीथिंग इनसाइड द मॉड इफ इट इज पॉजिटिव, मॉड कैन बी रिमूव्ड विद अ पॉजिटिव साइन. गॉट इट? राइट? तो ये आ गया साइन, और साइन का इंटीग्रेशन आपको आता ही है, माइनस कॉस कर दो इंटीग्रेट. ये हो गया a से लेके a प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स. एन कम्स आउटसाइड 0 से पाए, v इज ऑफ नो यूज प्रॉपर्टी. इसको इंटीग्रेट किया, ये आ गया 2n, ये आ गया 1 माइनस कॉस वी. दैट्स इट, सिंपल. ठीक है? सो देन वी सॉल्व इट. तो यहां से लेके यहां तक यू शुड नॉट डू दिस स्टेप बिकॉज यू ऑलरेडी रिमेंबर साइन का इंटीग्रेशन 0 से पाई के बीच में कितना हो जाता है? 1 1 2. सो दिस इज द आंसर. आ गया? चलो, ऑसम, वेरी गुड. So Suraj says it was like a board paper. So if you learn your concepts, तो जेई का पेपर मुश्किल थोड़ी ना होता है. जेई पेपर, ट्रस्ट मी, नो प्रॉब्लम इज लेंदी. ये तो गारंटीड है. ऑल द प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड इन 4 to 5 steps मैक्सिमम इन जेई एडवांस्ड एज वेल इफ यू अटेम्प्ट इट इन द राइट वे विद द राइट कंसेप्ट. तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, घबराने की जरूरत नहीं है. ठीक है? एंड अच्छा बच्चों, समझ में आ रहा है तो डू प्रेस ऑन द लाइक बटन सो दैट आई कीप गेटिंग द फीडबैक फ्रॉम यू गाइज. ठीक है? चलो, एंड डू कमेंट. आप लोग मेरे वीडियोस में रिप्ले जब बन जाता है, वीडियो खत्म हो जाता है, एंश्योर यू डू कमेंट ऑन द वीडियो अबाउट वॉट एवर दैट यू फील, बिकॉज मुझे आपका फीडबैक चाहिए होता है. क्लास में आप लाइव तो बोलते ही हो, ठीक है, बट मुझे आपके कमेंट्स चाहिए आफ्टर द वीडियो एज वेल सो दैट आई कीप गेटिंग योर फीडबैक एज वेल. ठीक है? आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स सॉल्व सम वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स. रेडी? कुछ मजेदार प्रॉब्लम करें. लेट मी बिल्ड अप विथ सम सिंपल प्रॉब्लम्स and let's get to some very difficult looking problems as well. Let's start with a simple problem. So the concept here is बच्चों, modulus and greatest integer are two favorites of IIT JEE. ठीक है? एंड वो उसको कहीं पे भी डाल देते हैं उठा के. Modulus and greatest integer is all about your understanding of how to break the function, right? So ये क्या बोल रहा है? 0 से 2
mod of x minus 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x dx। आपको समझना यह है कि मैं इंटीग्रेशन को कैसे ब्रेक करूं, ठीक। दिस इज नॉट अब मैं पीरियोडिक फंक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, क्लियर है। तो अब देखते हैं करना क्या है, लेट्स सी। कहां ब्रेक करोगे बच्चों, आपको पता है मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2। सबसे पहले बिकॉज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 you cannot integrate till the time you open the mod, but to open the mod आपको समझना पड़ेगा कि x minus 2 जो कि mod के अंदर लिखा है, what is written inside the mod, where it is positive, where it is negative। तो आपको तो पता ही है कि 2 से आगे x minus 2 पॉजिटिव होता है and behind 2 x minus 2 is negative, this to all of you know, right। So beyond 2 के आगे mod opens with a positive sign and before 2 mod opens with a negative sign। So ये बात तो पक्की है। Let me break it into two parts, integral 0 से 2 mod x minus 2 dx plus 0 से 2 greatest integer function of x dx। But since I am 0 से 2, since I am towards the left hand side of 2, x minus 2 is negative, so the mod will open with a minus sign। So this can be written as integral 0 से 2 minus sign x minus 2 dx। Now you can integrate, now you can integrate, no problem। तो ये तो आप इंटीग्रेट कर ही लोगे। अब रही बात ग्रेटेस्ट इंटीजर की। आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर चेंजेस इट्स वैल्यू आफ्टर इंटीजर्स। तो इसको कहां ब्रेक करेंगे बच्चों, यू विल ब्रेक इट एट 0 to 1 प्लस 1 से 2, राइट। आपको पता है बिटवीन 0 to 1 व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। हाँ, आंसर तो आप आ ही जाएगा। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन क्विकली। आंसर आप लोग लिख रहे हो कमेंट बॉक्स में, मैं देख रहा हूं। तो बिटवीन 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। बिटवीन 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 0, तो ये तो गया। बिटवीन 1 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों कितना होता है, 1। So it simply becomes integral 1 से 2 1 dx। Agree? अरे महावीर बेटा अभी करने दो, मैं जो क्वेश्चंस कर रहा हूं यहां पे, ठीक। डाउट्स आप अलग से पूछ सकते हो ऑन टेलीग्राम ग्रुप, क्लियर है ये। सो आंसर क्या आ गया आपका, व्हाट इज द आंसर हियर, द आंसर इज सी। जो आप बोल रहे थे आंसर इज सी, वेरी इजी। सो दिस वाज वेरी सिंपल प्रॉब्लम, जस्ट टेकन to help you understand how to break the integration if there is a modulus, if there is a greatest integer। यहां तक क्लियर। अरे मोहम्मद अरबाज x minus 2 क्यों नेगेटिव है बेटा, 2 से छोटी कोई वैल्यू रख लो, पुट 1 इन इट, पुट 1 इन द वैल्यू ऑफ x। 1 minus 2 कितना हो जाएगा, -1, नेगेटिव हो गया ना। और अगर 2 से बड़ा कोई वैल्यू रखोगे मोहम्मद अरबाज, लाइक 3 minus 2 is 1, पॉजिटिव। सो 2 के पहले नेगेटिव, 2 के बाद पॉजिटिव, ऑफ कोर्स ऑब्वियस, ठीक है। सो आंसर इज सी। नाउ लेट्स इंक्रीज द लेवल स्लाइटली, डू दिस। इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन प्लस कॉस। बच्चों समझ में आया ना प्रीवियस प्रॉब्लम, एनी डाउट, आई होप इट्स क्लियर। 0 से पाई बाई 2, विश्वजीत एक काम करो, फॉर एनटीएससी फॉलो वेदांतु 9th and 10th channel। on Vedantu 9th and 10th channel there are special classes of NTSC happening that will really help you crack NTSC in 2 months, ठीक है विश्वजीत। so follow Vedantu 9th and 10th channel। हाँ, 0 से पाई बाई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन प्लस कॉस। कोई मुझे बताएगा, थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम को भूल जाओ, सिंस इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसके अंदर लिखा है साइन प्लस कॉस एंड इट इज इन बिटवीन 0 to पाई बाई 2, देन आपको समझना यह है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है। एंड विनोथिनी सेंथिल कुमार, attend my class on greatest integer function in the chapter of functions। go to Vedantu JEE channel, search for my class on functions, search for functions Pulkit, you will see all my classes। वहाँ पे मैंने बहुत I took one entire class on greatest integer function, ओके वहाँ से रिवाइज कर लेना। तो आंसर अब देखते हैं, समझते हैं इसको। थोड़ी देर के लिए मैं प्रॉब्लम को भूल जा रहा हूँ,
आई एम फोकसिंग ऑन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या होता है, ठीक है. सो लेट्स फोकस ऑन व्हाट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. I want to understand it in between 0 से पाई बाई 2. Do you want me to do it graphically बच्चों? Should I do it graphically? देखना graphically कितने मजे से कर सकते हैं. Let's try to do it graphically, okay? देखना sin x plus cos x को graphically करता हूं मैं between 0 से पाई बाई 2. तो let us make the graph of sin and cos. So ये ग्राफ तो बच्चों किसका है? This is the graph of sin. So this is the graph of sin x. Now let me make the graph of cos x. Oh sorry, this is the graph of cos x, my bad. ठीक है, and let me make the graph of sin x. This is the graph of sin x. Agree? So this is sin x and this was cos x. ये है cos x, right? 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में. Where do they meet? They meet at पाई बाई 4. सबको पता है, because पाई बाई 4 पे both are 1 by root 2. Now when I add the two, ध्यान से देखना क्या होगा. Do you realize this is the line of symmetry? ये ब्लैक और रेड ग्राफ जैसा ये पोर्शन दिख रहा है आपको, बिल्कुल वैसा ये पोर्शन दिख रहा है आपको. एग्री? दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन आर सिमेट्रिकल, राइट? नाउ लेट मी टीच यू हाउ टू ऐड द टू ग्राफ्स. सो हाउ कैन यू ऐड इट बच्चों, देखना बड़े ध्यान से. यहां पे रेड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू ऐड द टू ग्राफ्स. आई एम ट्राइंग टू ऐड द टू ग्राफ्स. रेड प्लस ब्लैक एट जीरो साइन प्लस कॉस कितना हो जाएगा बच्चों? ये तो 1 है, दिस इज 1. ये है 0, ये है 1. व्हाट इज 0 प्लस 1? 1. सो द एडेड ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम 1, राइट? अब क्या होगा, दोनों ऐड होते जाएंगे. रेड प्लस ब्लैक, रेड प्लस ब्लैक, रेड प्लस ब्लैक, दे विल कीप गेटिंग एडेड. नेट वैल्यू विल बी हायर देन 1. कहां तक बढ़ता जाएगा? इट विल कीप ग्रोइंग टिल हियर, इट विल कीप ग्रोइंग टिल हियर. बट जैसा ये पोर्शन था बिल्कुल वैसा ये पोर्शन है. इट विल अगेन कम बैक सिमेट्रिकली हियर. क्यों? क्योंकि यहां पे भी क्या हो जाएगा, रेड प्लस ब्लैक, ब्लैक इज 0, रेड इज 1, 0 plus 1 is 1. So this is the graph of बच्चों क्या? This is the graph of sin x plus cos x. Now can you tell me the highest value here? What is this value? ये कितना है? 1 by root 2 plus 1 by root 2. Agree? यहां पे ये कितना है? 1 by root 2. So red and black both are 1 by root 2. तो बच्चों 1 by root 2 plus 1 by root 2 कितना हो जाएगा? 2 times 1 by root 2, that is root 2. Do you realize that sin x plus cos x in between 0 to pi by 2 looks like this, and its value varies between 1 से लेके root 2, 1 से लेके root 2. ठीक है? Somebody is asking why symmetrical? अरे बेटा इसको ऐसे फोल्ड कर दो, इसको ऐसे फोल्ड कर दो, तो जो शेप दिख रही है, ये कलर पे मत जाओ. दिस शेप एंड दिस शेप इज सेम ना, ये शेप और ये शेप सेम है. सो इन दोनों का एडिशन एंड इन दोनों का एडिशन सेम आएगा ना, इट विल कम आउट टू बी सेम, राइट? सो बच्चों क्या हो गया, आई क्लियरली अंडरस्टूड फ्रॉम हियर दैट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लाइज बिटवीन 1 से लेके रूट 2. sin x plus cos x lies between 1 से लेकर root 2 between x belongs to 0 से pi by 2. समझ में आया? अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा, now it clearly implies that if I take its greatest integer, this implies that greatest integer of sin x plus cos x. sin x plus cos x बच्चों किसके बीच में लाई कर रहा है? 1 से लेके रूट 2 के बीच में. रूट 2 कितना होता है? रूट 2 इज लाइक 1.4. एनी नंबर विच लाइज बिटवीन 1 से लेके 1.4 समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों कितना होगा? 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 1. सो भैया ये तो हो गया 1, राइट? इट इंप्लाइज दिस क्वेश्चन एक्चुअली बिकम्स इंटीग्रल 0 से लेके पाई बाई 2 1 dx. Hence answer is pi by 2.
समझ में आया? यस और नो? कूल. I wanted to teach this graphical understanding to you in this problem. That was my purpose of this class, to teach you how to think about sin x plus cos x graphically. हैं शिव सिंह, क्या बोल रहे हो बेटा? ये 1 + 1 2 कहां से आ गया है? ये दोनों 1 + 1 कहां से हो रहे हैं? sin x plus cos x always lies between 1 से लेके √2, as we can see in this graph, right? Any number between 1 से √2, like 1 से लेके 1.4 के बीच में कोई कुछ तो वैल्यू होगी इसकी, some value in between that, but whatever is the value, any number which lies between 1 से लेके 1.4 something का greatest integer will be 1 only. समझ में आया? Clear? ठीक है, चलो. So very important problem. This understanding was very important. समझ में आया? Yes or no? अरे बेटा महावीर, let me do the problems which I have taken. आप अपने डाउट्स अलग से पूछ सकते हो महावीर. You can ask later. ठीक है? I cannot take random questions. Let me follow a sequence of questions. Cool? हाँ, अब ये करें क्या? चलो, let this be the last problem of the day. And it looks pretty complicated. टाइम मिलेगा तो इसके बाद एक प्रॉब्लम और करेंगे, बट लेट अस अप्रोच दैट. आई वॉन्ट यू टू रीड इट केयरफुली एंड आर्यन सेज नॉट क्लियरली. बेटा आर्यन एक बार प्लीज रिवाइज करना. ऑल दीज कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई वॉन्ट यू टू रिवाइज द क्लास वंस अगेन. ठीक है? राजदीप मलिक, अगेन प्लीज बेटा एक बार रिवाइज करो. डोंट वरी, आई विल कीप रिपीटिंग दीज कंसेप्ट्स अगेन एंड अगेन इन माई सब्सिक्वेंट क्लासेज. राजदीप एंड आर्यन, विदाउट ग्राफ. आर्यन विदाउट ग्राफ बेटा तरीका होता है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2. आर्यन थिंक अबाउट इट, व्हाट आई एम सेइंग. sin x plus cos x, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √2, इट विल बिकम √2 टाइम्स sin x plus π/4. वहां से भी कर सकते थे, वहां से भी कर सकते थे. ठीक? हाँ, आ जाओ इसके ऊपर, रीड इट. अभी इस पर फोकस करो. प्रीवियस प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से फिर बताता हूं. वेट, डोंट वरी, आई विल अगेन टेल यू. हाँ, लुक्स कॉम्प्लिकेटेड बट नहीं है. देखना ध्यान से. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर दैट ये लिखा हुआ है, देखो ये क्या है. दिस एंटायर थिंग इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब ये कांस्टेंट है. कंफ्यूज मत हो. लेट्स टेक इट ए. इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, टेक इट एज ए. इंटीग्रल a to x ft dt इज इक्वल टू दिस. भैया ये तो देखते ही समझ में आया बच्चों किसका एप्लीकेशन है ये. Whose application is this? जल्दी से लिखो in the chat. किसका एप्लीकेशन है यहाँ पे? इंटीग्रल फंक्शन ऑफ t बट लिमिट्स x के फॉर्म में न्यूटन-लेबिनिट्स. एग्जैक्टली राइट. न्यूटन-लेबिनिट्स एज प्रीतम मंडल सेज, राइट. न्यूटन-लेबिनिट्स एज आयुष्मान तिवारी सेज. वेरी गुड. प्रणव, मोहम्मद अरबाज. तो भैया ये तो न्यूटन-लेबिनिट्स है. मतलब इस प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं, भूल जाओ इसको, फॉरगेट अबाउट दिस. इसका मतलब पक्के से न्यूटन-लेबिनिट्स तो लगा देंगे, तो लगा के देखते हैं. लेट्स ट्राई टू अप्लाई न्यूटन-लेबिनिट्स. कैसे? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो लेट मी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इट विल गिव अस समथिंग. तो पहले कर लो, उसके बाद सोचेंगे भाई लफड़ा क्या है प्रॉब्लम में. ठीक है, पहले जो दिख रहा है वो तो कर ले. सो व्हेन आई डिफरेंशिएटेड न्यूटन-लेबिनिट्स, ये कितना हो जाएगा बच्चों? First put the upper limit f of x into differentiation of upper limit 1, तो ये तो fx ही हो गया, minus 0 because differentiation of lower limit will be 0. We have done it so many times, so I'll go very fast here. अरे मोहम्मद अरबाज आऊंगा, प्रीवियस प्रॉब्लम में फिर से आऊंगा, डोंट वरी. इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन. लेट अस डिफरेंशिएट द राइट हैंड साइड. x²/2 का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना हो जाएगा? 2x/2 दैट इज x. ठीक है, प्लस पुट द अपर लिमिट डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट 0 बिकॉज अपर लिमिट इज कांस्टेंट, राइट. तो ये तो गया, ये तो 0 हो गया. माइनस पुट द लोअर लिमिट इन द प्लेस ऑफ t, दैट इज x² f of x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट 1, तो ये हो गया.
डू यू रियलाइज दिस इज एक्चुअली गोइंग टू गिव यू एफ ऑफ एक्स. ध्यान से देखो, यहां से एफ ऑफ एक्स आ जाएगा. इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स बच्चों कितना आ गया, देखना जरा कितना आया, एक्स अपॉन ये आ गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर आ गया. एग्री? यस. देखो राजदीप ने हिंट दिया है, राजदीप इज गिविंग अ हिंट देयर, राजदीप मलिक. ठीक है, जब यहां तक पहुंच गए ना तब आया दिमाग में, अरे यार ये क्वेश्चन जो है ना वो तो माइनस ए से ए वाला है. आई टोल्ड यू वेन एवर इट्स अ प्रॉब्लम बिटवीन द लिमिट्स माइनस ए टू ए देन गारंटीड इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट. कौन सा कंसेप्ट का प्रॉब्लम है ये? इवन एंड ऑड. शांतनु कुलकर्णी, मोहम्मद अरबाज. बस गारंटीड प्रॉब्लम इवन और ऑड का है. अब मेरे दिमाग में केवल एक चीज आ रही है, भैया इवन और ऑड ढूंढते हैं इसके अंदर. राइट, सुपर. अब देखो कैसे, दिस इज हाउ यू बिल्ड द स्टोरी इन योर ब्रेन. दिमाग में ना ऐसे कहानी बनती है. सो अब इसको देखते हैं एक एक करके. नाउ लेट अस ट्राई टू इमेजिन दिस. अरे हो जा भाई. हाँ, तो ये तो क्या है, डिनोमिनेटर तो इवन है, न्यूमरेटर तो एक्स है. सो वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो इवन है, बट एक्स खुद तो क्या है, ऑड है. तो ये पूरी चीज बच्चों क्या हो गई, दिस इज तो ऑड, तो ये तो ऑड है. एफ ऑफ एक्स तो ऑड है. अब इस फंक्शन को स्टडी करते हैं अच्छे से. मैंने देखा कि भैया ये तो ऑड है, एफ ऑफ एक्स ऑड, एक्स की पावर 9 ऑड, एक्स की पावर 3 ऑड, एक्स ऑड. तो मैं क्या करता हूं, मेरे दिमाग में आ रहा है, व्हाट इज कमिंग टू माई माइंड इज दिस, कि एफ एक्स, एक्स की पावर 9, एक्स क्यूब और एक्स, अगर इन सबको निकाल लूं अलग से, डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर एक्स है वो तो इवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट न्यूमरेटर तो क्या है, ऑड है. तो ये पूरी की पूरी चीज बच्चों क्या हो जाएगी, ऑड. ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड इज ऑड. तो ये पूरी चीज तो ऑड है. बचा क्या बच्चों, बचा वन अपॉन दिस. कैन आई ब्रेक दिस इंटीग्रेशन इनटू टू पार्ट्स. एक तो ले लो ये वाला प्लस वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, बट ये वाला तो जीरो हो जाएगा. माइनस ए टू ए ऑड तो उड़ गया, इट बिकम जीरो. केवल क्या बचेगा बच्चों, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स. आर यू फॉलोइंग मी, यस और नो? यस. एफ ऑफ एक्स ऑड कैसे शिव, ये है ना एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर. इसमें डाउट है किसी को, ये ऑड कैसे है? इट इज ऑड बिकॉज ऑफ दिस. कैसे करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट बाय सेइंग एफ ऑफ माइनस एक्स कितना होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एक्स अपॉन वन प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर विच इज माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर. दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स अगेन माइनस ऑफ एफ एक्स. सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स विच इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज ऑड. यहां से आया, एग्री? तो यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए. अब आगे बढ़े, लेट मी मूव अहेड. कैन आई मूव अहेड? सो क्या किया अपन ने पहले एफ ऑफ एक्स निकाला. द सेम आई एम रिपीटिंग इट. वी फाउंड आउट एफ ऑफ एक्स बाय न्यूटन लेबिनिट्स. उसके बाद हमने क्या किया, आई ब्रोक द प्रॉब्लम इनटू टू पार्ट्स. आई ब्रोक द प्रॉब्लम इनटू टू पार्ट्स. ये वन गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया. वन पार्ट इज दिस, अनदर पार्ट इज दिस. सो एफ एक्स प्लस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स क्यूब, ये जो भी है, अपॉन दिस, दिस एंटायर थिंग इज ऑड. तो इट्स आंसर इज 0 माइनस ए टू ए. बचा कितना, माइनस ए टू ए वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स विच यू कैन सॉल्व. दिस इज नथिंग बट सीकेंड स्क्वायर एक्स. सीकेंड स्क्वायर इज 10x माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4. आंसर इज 2. विच many of you said answer is 2, right? Awesome, super awesome, very nice. ठीक है, clear? Any doubt? Super awesome. Yes, Etrik Shrivastava, yes, there will be test series, don't worry. आपको बता दूंगा whenever test series का time आएगा, I will tell you. Cool. Now, do you want me to give you home assignment problems? Yes. So let me give you some home assignment problems today. ठीक है, चलो. So let us take some home assignment problems. This is the first one. This is the first one.
Why odd is 0? Technically tech, beta, revise my third class of definite integration in which I taught you why odd and even functions behave in whatever way they behave, है ना? क्लियर? तो ये नोट कर लो, इसका सॉल्यूशन यहीं पे दिया हुआ है. लेट मी फटाफट स्किप इट बिकॉज इट्स अ प्रॉब्लम. लेट मी गिव यू मोर होम असाइनमेंट प्रॉब्लम्स. होम असाइनमेंट प्रॉब्लम नंबर 1 इज दिस. एक तो पहले दे दिया मैंने. हाँ, सॉल्यूशंस विल बी देयर इन दिस क्लास ओनली. In the PDF will be available in the Telegram group. Telegram group का link is in the description. कई बच्चों का group open नहीं होता. If you are trying to connect with Telegram group with Jio network, at times you face problem. So disconnect with the Jio network, connect with some other Wi-Fi, join the group, then it works fine. ठीक है? And the PDFs are also available in the Vedantu app on Play Store. तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, right? हाँ. So this is problem number 1. I want your answers in the comment box after the class. All of you put your answers in the comment box after the class. Problem 1, ठीक है? Problem number 2, you can take the screenshot after the class as well. शांतनु, शेयर हो जाएगा PDF बेटा. Towards the night it gets shared. ठीक? अरे नहीं, प्रीतम मोंडल, 0 to 1 ln(x) नहीं बोला था मैंने, -1 बेटा. हाँ, करके देख लो ना सॉल्व. प्रीतम, जस्ट ट्राई टू इंटीग्रेट इट एंड सी, अपने आप पता लग जाएगा. थर्ड प्रॉब्लम इज दिस. 0 to 100 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट x. 0 to 100 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट x dx. वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. डू इट. ओके, कूल. And this is the last problem. 2 से 3, 1 upon under root x cube minus 3x square plus 5. Very nice problem. डिस्क्रिप्शन में PDF डालें, ठीक है? प्रणव, I'll take your feedback. When do we do inequalities? हाँ, विष्णु वो करेंगे, वो लेटर, बाद में करेंगे. You're talking about definite integration inequalities. Will do. वर्कशीट शेयर किया बेटा नरेंद्र. वर्कशीट्स आर ऑल्सो शेयर्ड विथ यू गाइज ऑन टेलीग्राम ग्रुप. नहीं तो वेदांतु की ऐप डाउनलोड कर लो, दे आर देयर. सो दिस इज योर लास्ट प्रॉब्लम. एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर. बट बिफोर आई लीव, मेनी ऑफ यू आर आस्किंग मी अबाउट द अल्टरनेट वे ऑफ साइन एक्स. मतलब प्रॉब्लम ना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. देखो बच्चों, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का अनदर तरीका ये होता है. साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते थे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √2. क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा. आई कैन ट्रीट दिस एज साइन एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4. सो दिस बिकम्स √2 टाइम्स साइन एक्स प्लस पाई बाई 4. एग्री? यू कैन ऑल्सो सॉल्व लाइक दिस. उसने बोला था एक्स लाइज बिटवीन 0 से पाई बाई 2, राइट? सो आप क्या कर सकते हो? आप देखो, व्हेन x लाइज बिटवीन 0 से पाई बाई 2, x प्लस पाई बाई 4 लाइज बिटवीन 3 पाई बाई 4 से पाई बाई 4, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4. बिटवीन पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, ये साइन एक्स का ग्राफ है. पाई बाई 4 ये रहा, 3 पाई बाई 4 ये रहा. बिटवीन पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, योर साइन एक्स लाइज बिटवीन √2 से लेके 1. योर साइन एक्स लाइज बिटवीन √2 से लेके 1. ठीक है? सो बिटवीन पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 विल लाई बिटवीन व्हाट? विल लाई बिटवीन व्हाट? √2 से लेके 1, √2 से लेके 1, राइट? Now, since you wanted √2 times sin x plus pi by 4, multiply by √2 on all the sides. Multiplied by √2 on all the sides. Oh sorry, √2 नहीं, 1 by √2. √2 कहाँ से आ गया? 1 by √2. So multiplied by √2 on all the sides.
तो ये कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, दैट इज दिस थिंग लाइज बिटवीन 1 से लेके √2, एग्जैक्टली व्हाट वी कैलकुलेटेड, इज एग्जैक्टली व्हाट वी कैलकुलेटेड, यस और नो? ठीक है, समझ में आया, क्लियर? तो दिस वाज द अल्टरनेट वे ऑफ डूइंग द सेम क्लास. चलो एनीवेज, अब let me close the class and I have given you 4 to 5 home assignment problems. I want your answers in the comment box. All right, ठीक? And ये क्लास बच्चों मिस मत करना. Which class? Don't miss this class, very very important. My last class, that is on 31st. अरे हट जा भाई, ये 31st वाली क्लास बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है. Make sure you attend this class. This is at 9 p.m. on Saturday. On 9 p.m. on Saturday. Very 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 important class. And chalo, on that note, I will end my class with my always what I say. This is what you have to do. Keep smiling बच्चों. Have y equal to x square on your faces. Keep smiling. Have confidence on yourself. All of you are very very special. कोई भी किसी से कम नहीं है. In every sense, all of you are diamonds. All that you are doing right now as you're growing is polishing that diamond that all of you are. अपने अंदर के हीरे को तराश रहे हो, ठीक है? होता रहेगा, उसमें क्या है, बस खुश रहना पूरे प्रोसेस में, पूरे जर्नी में हमेशा खुश रहो, बस वही लाइफ है, वही सक्सेस है. IIT JEE is not the success, this is the real success. ठीक है, चलो, on that note, bye, see you in my next class on 31st at 9 p.m. Bye bye.